ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳು. ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡವೆಚಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮತ್ತು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವೈಭವಕರಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಧನೋಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಲೈನು ಸೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸೀದಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೇ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ಯೋಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಿಡೋದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಸರ್. ತಾತ್ಪಾಲಗಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀರ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಈ ಸಾಲು ಮುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಡೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಕಲ್ಮಠದ ಶಾಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ. ಗಿಡದ ಕುಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾಳ್ಬೇಕು. ವಾಡಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇದು ಮಿಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಜಾಗವನ್ನ. ಮಿಡ್ಲು ಸರ್, ನೀವು ಕೂತ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಮಾನವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ತಾಯಿದ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೂತು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ್ರಿ, ಬರಲಿಗ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕೂಡ್ರಿ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯರ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಸಲ ನಮನ.
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಆಯಾ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊಗಡನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮರಣೆ ಹರಿದ್ವಾರ. ಈಗ ತಂಡದವರು ಈ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಗ ಋಷಿ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾರವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಸತ್ಯಪ್ಪನವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ದೂರದರ್ಶನದವರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೃದಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗುಂಪನ್ನ ಕಲಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಜನ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಗ್ಧವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಡುವಂತ ಮುಗ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು, ಸಂತರು, ಶರಣರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪವಾಡಗಳು, ಅವರ ಸದೃಶ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುವಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಸಂತರು, ಸರಿಬದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರ. ಹಲೋ, ಅದೇ ಇದಾದ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ.
तालियों के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं नाम है। हम जिएंगे और मरेंगे हम दिल दिया है तू मेरा धर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है। ये वतन महबूबी सच में दिल कुर्बान है। वतन महबूबी तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे। हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर गाइए ऐ वतन तेरे। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा देश मेरा शांति का उन्नति का रास्ता है। इसके रास्ते मेरे साथ
मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, जिसने ये सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन वास्ते निसार है मेरा मेरा दोनों हाथ में उठा के ताली के साथ ओ मेरा मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते मेरा मेरा भारत माता की एक बार जोरदार तालियां आपके आस्था चैनल और हमारे संस्कृति ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು. ಯೋಗ ಋಷಿ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವನ್ಲಾಲ್ ಆರಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಮದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಎಮ್ಮೀನೂರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಬರಬೇಕಂತ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಷಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಮದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಎಮ್ಮೀನೂರುಜಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಳಸಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಜಿಯವರು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಚಂದ್ರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದೀಕ್ಷೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧೀಮಂತ ಸಂತ, ಯೌಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿಕಾರರಾದಂಥ ರಾಮದೇವ್ ಗುರೂಜಿಯವರಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ಯೋಗಾಸಕ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಯೋಗ ಪಟುಗಳೇ, ಸದ್ಭಕ್ತರೇ ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಯೋಗ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ.
ಕೋಗಿಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಗಯೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾಯಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಗಿಲೆಗೆ ರಾಗಯೋಗ, ನವಿಲಿಗೆ ನಾಟ್ಯಯೋಗ, ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಪವನ ಯೋಗ, ವನಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಯೋಗ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧೀಮಂತ ಸಂತರವರು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಪತಂಜಲಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಇತಿಹಾಸದ ಯೌಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತನಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಬಹಳ ಓಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಹಳ ಕುಂದಿರ್ತದೆ. ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ರೋಗ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಓಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಓಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡೋದು. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಕೂಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡಿಸಿದ್ರದೇ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಗಲು ಹಸನಕ್ಕೆ, ಇರುಳು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕೂದಿರುವರು, ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ಅಂತ. ಅಗಸ್ರವ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿ ಸತ್ಬಿಟ್ನಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಕಾಲಾಗಿದ್ದು ನೀರಡಿಸಿದ್ದ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಯಾರು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಗಸನೇ ಬಟ್ಟಿ ಅಡಿಗೆ ಆಡಿಸಿ ಕಲಿಕೆ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಈ ಶರೀರ ನಾವು ಕಾಲಾಡಿಸಿ, ಕೈಯಾಡಿಸಿ, ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಈ ಶರೀರ ಬಳಕೆಯಾಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುವಂಥ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಶರೀರ ಮಿತ್ರನೂ ಅಲ್ಲ, ಶರೀರ ಶತ್ರುನೂ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರ ಶತ್ರು ಯಾಕಾಗ್ತದೆ, ಶರೀರ ಮಿತ್ರ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಈ ಸಾಧನ, ಇದರ ವಿಧಾನ, ಇದು ಸಾವಧಾನ, ನಿಧಾನ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಿಧಾನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ ತೆಳ್ಳಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಉಪವಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹರಿದ್ವಾರದ ಯೋಗ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಗೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ನೇರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯರ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. करेंगे सबको योगाभ्यास करना है ना मेरे साथ, बच्चों को भी करना है ना। चलो सीधे बैठो, ओम बोलेंगे पहले।
आर्यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमामृतं गमय शान्ति शान्ति शान्ति। योग परंपरा में योगाभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम और ध्यान। यद्यपि योग के 8 अंग हैं, मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयाः अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 यम 5 नियम और इसके बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ये अष्टांग योग की परंपरा। इस अष्टांग योग में प्राणायाम और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। आज आपको पहले प्राणायाम करना, डेली प्रैक्टिस करना, ½ आवर टू 1 आवर, 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली योग प्रैक्टिस करने से अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, मन आत्मा हमारा पवित्र रहेगा। इसलिए बचपन से चाइल्डहुड से लेकर के यंगस्टर्स से लेकर के जो हमारे बड़े यहाँ पर बैठे हैं वरिष्ठ हैं, इसको कहते हैं भस्त्रिका। सब कीजिए 3 to 5 मिनट्स ऐसे लेगा। डीप लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, इम्यूनिटी के लिए, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस, एलर्जिक राइनाइटिस, लो इम्यूनिटी और सभी बीमारियां का मूल कारण है लो ऑक्सीजन सप्लाई। तो ऐसे सामान्य गति, मध्यम गति, तो ज्ञान है वो यह भस्त्रिका। क्या नाम है बोलो इसका? जो भस्त्रिका नहीं करेंगे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा, उसको निमोनिया भी होगा तो डेथ हो जाएगा। अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, चाइना से शुरू हुआ। कोरोना में होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर, निमोनिया हो जाता है और लंग रेस्पॉन्ड नहीं करते, आगे करते। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पूज्य पेजावर स्वामी जी पूरे हेल्थ के थे, अचानक उनको निमोनिया हुआ और चल एक रेस्पिरेटरी सिस्टम
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर, सेकेंड हार्ट अटैक से, थर्ड फिर कैंसर से, फिर बीपी शुगर इनके कॉम्प्लिकेशन से लीवर फेल हो जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का ब्रेन फेल हो जाता है। ऑर्गन फेलियर में सबसे ज्यादा लंग यदि ठीक से मैक्सिमम 5 मिनट 3 to 5 मिनट बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन लेने देगा मृत्यु पूरा ऑक्सीजन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुआ बीमारियों का pollution, bacterial environmental disease, disease के complications, दवाई के side effects, these are the cause. सबसे बड़ा कारण क्या? अड्डा, ultimate reason. Basic cause of कैंसर की हो सकता है, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई बीमारी नहीं होगा यदि आपको ऑक्सीजन सप्लाई किया है। तो 2, 3 or maximum 5 years to daily deep breathing. This is the basic health. अब सेकंड ब्रीथिंग है, क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रीथिंग? पीछे वाले बच्चे बोलो तो से लाउडली इन बैक साइड। क्या नाम बच्चों? से स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रीथिंग? कपालभाति। से लाउडली Kapalabhati. The name of this breathing is Kapalabhati. Kapal means forehead, the face. आप इसको करते हैं तो आपका forehead, आपका फेस ग्लो करने लगता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। लो हीमोग्लोबिन, लो कैल्शियम, लो प्रोटीन, फिर ओबेसिटी, diabetes, constipation, pars viscer fistula, sexual disorders, sexual detach, heart problem, heart blockage, then thyroid problem, arthritis, rheumatoid arthritis, ये सब का solution है इस प्रकार का। बहुत छोटा ब्रीथिंग करके देखो। हमारा दोनों स्वामी भी करता है। बड़ा दोनों स्वामी जी के चरणों में एक बार बात अनुग्रह प्रदान किया। कपालभाति जो बच्चे करेंगे उनका भूख अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। बहुत से बच्चों का डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। बहुत से बच्चे रात को सोते समय सुसु करते हैं, कीड़ी पास हो जाता है रोज रात को नींद में। कपालभाति करेंगे तो नाइट में यूरिन नहीं होगा। किसी बच्चे को इतना गैस बनता है पूरा क्लासरूम बेहोश हो जाता है। नो गैस, नो कॉन्स्टिपेशन। बहुत से बच्चे घर में टॉयलेट ही नहीं जाते, स्कूल में जाके टॉयलेट जाते, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये नो कॉन्स्टिपेशन, नो इंडाइजेशन, नो पार्स विसर फिस्टुला। बड़ा उम्र में एल्डर ऑफ एज कॉन्स्टिप होता है जेनेटिक इफेक्ट
Last 25 years से last 25 years hemoglobin level is 17.5 hemoglobin level is high तो आपको कोई थकान नहीं आप सदा जवान रहेंगे hemoglobin 100% absolutely right not deficiency of iron विटामिन डी विटामिन बी भी थोड़ा डेफिशिएंसी होता है ये हेपेटाइटिस कोलाइटिस पेनक्रियाटाइटिस डायबिटीज आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस सोराइसिस एसएलएमएस डिजीज और हाफ आवर टू 1 आवर कपालभाति हाफ आवर टू 1 आवर। तो आज कंपनी वाले संकल्प ले लो कि हमको कोई ड्रग नहीं लेना, नो बीड़ी, नो सिगरेट, नो शराब, नो तंबाकू, नो अल्कोहल। अच्छा बताओ अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में आयरन होता है क्या, प्रोटीन होता है क्या, विटामिन होता है क्या, उसमें ताकत होता है क्या? कुछ ताकत है वो भी खत्म हो जाता है, खाली नशा होता है। तो दिमाग ऐसे ही खराब करना है तो ऐसे ही कर लो। आप प्राणायाम ध्यान करेंगे, नो ड्रग, नो वायलेंस, निरोगी जीवन, निर्व्यसनी जीवन, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, दिव्यता से युक्त जीवन, कपालभाति। फिर ये 5 to 10 मिनट्स डेली करना, स्पीड एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, बॉडी एकदम शेप में रहेगी, मसल्स आपके अच्छे हो, आपका सीना उभरा हुआ हो, पेट सिकुड़ा हुआ हो, कमर पतली सी हो। अपना पेट चेक करो तो पीछे अंगूठा रखो तो सामने पेट अंगुलियों में समा जाए, इतना पेट होना चाहिए, पेट का लेवल इतना होना चाहिए। अपना चेक करो, सब डुम्मा डुम्मी हो रखे, पेट हल्का होना चाहिए, इतना होना चाहिए। देखो और घुमाओ तो घूम जाए ऐसे। शरीर पर कंट्रोल, फुल कंट्रोल, बॉडी माइंड। हाँ सुनो, ये कपालभाति बाह्य प्राणायाम, एक ब्रीथिंग, एक गले थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, बच्चों के लिए भी। हाइट अच्छी उन बच्चों की होगी, अच्छी हाइट के लिए थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों का हेल्दी होना जरूरी है। तो उसके लिए एक तो ये ऊंचाई, ब्रेथ को होल्ड करना, साउंड के साथ रोकना, ब्रेथ को इनहेल किया, फिर होल्ड किया, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़ा। यह ऊंचाई क्या है, वो इसका नाम बोलो, ये बहुत जबरदस्त है। बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल और गला खराब हो चुका होता है, T3, T4, TSS, थायराइड, पैराथायराइड का प्रॉब्लम, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, सब स्नोरिंग से लेकर सब प्रॉब्लम दूर होता है। देन अनुलोम विलोम, सब राइट हैंड उठाओ, सब बच्चे स्टूडेंट्स रेज योर राइट हैंड
And close your right nostril with your right thumb. Inhale the breath through your left nostril. Then close your left nostril with your middle and ring finger and exhale the breath through your right nostril. Then inhale through your right and exhale through your left nostril. Alternatively breathing. Do this continuously. Do these 5 minutes. This is Anuloma Viloma breathing. What is the name of this breathing? Anuloma Viloma. क्या नाम है बोलो जोर से. लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है. राइट ब्रेन है हमारा इमोशनल ब्रेन. यहाँ फेथ है, लव है, कंपैशन है. ऐसे मुंह से लेके माउथ से ब्रेथ को इनहेल किया, नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया. यह शीतली. क्या नाम है बोलो. फिर शीतकारी. दांत बंद, दांत के पीछे जीभ लगाते. मुंह से लिया, नॉस्ट्रिल से ब्रेथ को एक्सहेल. ये हाइपरटेंशन के लिए गुड ब्रीथिंग है. क्यों? फिर अभी मैं शुगर के लिए बोलूंगा. शुगर क्योर, थायराइड क्योर, आर्थराइटिस, अस्थमा, सब प्रॉब्लम क्योर हो जाती है. अभी मैं आपको बीपी के लिए बोल रहा हूँ. अभी मैं थोड़ा सब यंगस्टर्स के लिए पहले बोल देता हूँ, बता देता हूँ, फिर आपको शुगर के लिए बताऊँ, स्पाइनल कोड के लिए बोलता हूँ. देखो यंगस्टर्स को तो बच्चों को 5 आसन सबको कराना. 5 आसन में कितना समय लगेगा? ईच पोस्चर 1 मिनट. तो 5 आसन में कितना समय लगा? 5 मिनट. तो आप जो कर सकते हैं मेरे साथ, जो यंगस्टर्स अपने आप को कोई भी जवान मानता हो, जैसे मैं अभी जवान हूँ और ऐसे कम से कम 50 साल जवान रहने वाला हूँ, 100 ईयर्स तक एवर ईयर. तो 5 पोस्चर्स फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए. बच्चों आप लोग कोशिश करो. छोटे बच्चों को सबको करना है. कुछ बड़े बच्चे भी कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजा दो. अच्छी बात है. ये 100 साल तक ऐसे कर सकते हैं. हमारा भंवरलाल भी करता है, ये भी जवान ही है. एक स्वामी जी थे, मैं बचपन में देखता था उनको, स्वामी भीष्म जी. वो 115 ईयर्स के थे. कितने? 115 के. और वो शीर्षासन करते. क्यों नहीं कर सकते? या बुढ़े हो गए जी? नो. फिर बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सर्वांगासन. ऐसे
बच्चों के लिए जरूरी है। सब बच्चे ऐसे करना, फिर ऐसे हाथ उठाओ, आगे झुक जाओ। ये सब बच्चों को करना, बच्चों को ये 5 पोस्चर्स और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से पूरा शरीर का आरोग्य होता है, पूरा शरीर का। 12 पोजेज है। जो बच्चे योगाभ्यास नहीं करते, फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ वर्कआउट नहीं करते, थोड़े दिन तो बच्चों में नेचुरल एनर्जी रहती है, थोड़ी देर के बाद सब बीमार। एक घर में 10 आदमी है तो 9 बीमार, ये ठीक नहीं। तो सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए, जो बच्चे हो कर लो। बच्चे खड़े हो जाओ, स्टूडेंट्स सब मेरे साथ करो सूर्य नमस्कार। कैसे? फिर आगे माथा घुटनों से, राइट लेग के ऊपर ऐसे रेस्ट किया। करो, कोशिश तो करो। राइट भी पीछे, फिर उठ गए, फिर पीछे, फिर लेफ्ट आगे, फिर राइट आगे। बच्चों का अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। बच्चे तो ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो हैंड स्टैंड, हैंड स्टैंड। बैठ जाओ, बैठो बैठो। बच्चों का कोर्स पूरा हो गया। बच्चों को डेली 5 पोस्चर्स। ये बच्चों, इन बच्चों को बैठाओ। कुछ बच्चे बड़े उद्दंड हैं, बैठ जाओ। इन पीछे 2-4 बड़े आदमी समझदार, उनको बैठा दो। 1-2 कार्यकर्ता लगा दो उधर। शांति से बैठो, सुनो। सबके लिए योग, सबके लिए। खाली 12 आसन कर लेना, सबके लिए बता रहा हूं। अब उठो, अंदर उंगलियों को मुठियों को। योग फॉर ऑल, मंडूकासन, सब करो। डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, फिटनेस के लिए। ये हम मंडूकासन, क्या नाम है बोलो? सारे पोजेज बता रहा हूँ, सब कर लेना, सबके लिए। हाँ, ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए जबरदस्त है ना। ऐसे ऐसे अंदर के दूसरे ऐसे। आगे झुक के गर्दन सीधी रखना। पेट और डायबिटीज, पहले ही दिन से डायबिटीज अच्छी। फर्स्ट डे डायबिटीज कंट्रोल। मेल बंदा गुटक तक ये है मंडूकासन, क्या नाम है बोलो? फिर दोनों हाथ घुटनों पर 3 to 5 टाइम्स प्रत्येक पोस्चर को कर सकते हैं। हाथ ऊपर,
ये हो गया मंडूकासन और शशकासन। आगे झुकने से ही दिमाग ठीक रहता है, इसलिए सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो। मेरे साथ मिलके बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके धरती माता को, माता पिता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करके अपने हृदय में कृतज्ञता रखना कि मैं भारत माता की यशस्वी वीर संतान हूँ और अपने भीतर को गौरव रख करके अपने कर्तव्य का निर्वहन। तो ये मुंडूकासन, शशकासन। फिर दाहिना पैर मोड़ो, वक्रासन, पेट और डायबिटीज के लिए, पीठ के लिए भी आता है। लेफ्ट लेग एकदम सीधा, राइट मोड़ा, लेफ्ट हैंड को बीच से डाला, ऐसे घूम गए। डेली कर लेना है, फिजिकल फिटनेस के लिए भी, कंप्लीट फिटनेस के लिए। और बहुत इजी है, सब कर सकते हैं। योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। कोई पेमेंट नहीं करना इसके लिए, किसी ने कोई पेटेंट नहीं करा रखा योग का। ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी ओर से। कंट्रोल रहेगा, पेट पर विस्पंदन को करें। फिर बाएं पैर लेफ्ट को नीचे से किया, राइट को। गोमुखासन, बोलो क्या नाम है? ये कंधों के लिए, साइलेंस प्रोटेक्शन के लिए, स्टमक के लिए, हाइड्रोसिन के लिए, कंप्लीट बॉडी के फिटनेस के लिए, ठीक है, अच्छे फिगर्स के लिए। राइट हैंड, राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट पीछे से लेंगे और ऐसे। सबने किया ना? कुछ तो ऐसे ही बैठे हुए, थोड़ा तो चेष्टा कर लो। हाँ? दूसरी तरफ से करो, ट्राई करो। होता नहीं है तो केवल ऐसे करके खाली एक्टिंग तो करो। लेफ्ट ऊपर, तो लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट पीछे से। यह है गोमुखासन। क्या नाम है? ये सर जो है पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, वर्टिगो, बहुत प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा, फिर मैं आपको बोल रहा था 12 अभ्यास रोज कर ले। उल्टे लेटो, जहाँ जगह हो लेटो, जहाँ जगह हो लेटो मेरे साथ। खाली योग में आए हुए कोई तमाशा देखने थोड़ी आए हो, करो जहाँ जगह हो करो। से मोड़ के धनुरासन भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। कमर के लिए, बैकिंग के लिए बहुत अच्छा है मर्कटासन। अब तो वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट, सभी डॉक्टर्स, सभी प्रोफेशनल्स, सब पॉलिटिशियंस, सभी एक्ट्रेस, सब लोग अब तो ये करने लगे हैं। सभी खिलाड़ी, स्पोर्ट्स के लोग सब करते हैं, क्योंकि इससे स्पाइन कॉर्ड एकदम परफेक्ट हो जाती है। मर्कटासन, सेकंड पोज ऐसे, और थर्ड इसका ऐसे पैर उठा करके अपोजिट साइड में ले जाके ऐसे, एक तरफ से दूसरी तरफ से।
ये सबको करने चाहिए। फिर पवन मुक्तासन, कमर दर्द है तो सिर नहीं उठाना, नहीं तो सिर उठा के ऐसे करो। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी हो गया, डायबिटीज के लिए भी हो गया। फिर मोटापा के लिए 3 पॉज, ओबेसिटी के लिए, ओवरवेट से उनके दोनों पैरों से नहीं कर सके तो एक से करना। और फिर बड़ा शल्य बनाना है, थाई बटक चिप्स एकदम हल्के हो जाए, ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ से प्रोफाइल, एंटी प्रोफाइल, थाई बटक चिप्स एकदम हल्के हो जाए। और फिर द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग। इतना भी कर लेंगे तो ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। 12 पॉइंट्स हो, जिनका पेट बहुत खराब रहता है, स्टमक डिस्टर्ब है, स्टमक अपसेट है और डायबिटीज है, तो उत्तान पादासन ये बहुत अच्छा है। 1 मिनट ऐसे उठा के रोक करके रखना, होल्ड करके 1 मिनट 30 डिग्री एकदम रिलैक्स को स्टिल रख करके बैठ को इन साइड होल्ड करके और ऐसे एक पोजीशन में पैरों को होल्ड करना। हाफ मिनट से स्टार्ट करके 1 मिनट तक, और दोनों तरफ से कर ले तो और अच्छा है। उत्तान पादासन के बाद ये लोकासन। ಯಾವ ಬಂಜಮೆ इनको भी पेटों को ಮೂರುವರೆ ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन और डायबिटीज की क्यों फिर ज्यादा पेट अपसेट है तो ये एक थोड़ा कठिन है, जिसको पाना मुश्किल आसास प्रशासन ಬಂದು ಮತ್ತೆ इजी क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं। और 12 पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसके बाद डायबिटीज के लिए उत्तान पादासन, लोकासन कर लिया। कठिन पोस्चर्स ये बच्चों के लिए, उनको एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनके लिए ठीक है, सबके लिए जरूरी नहीं। अब जैसे बच्चे तो पद्मासन भी कर लेते हैं, पद्मासन में आगे झुक लिए तो पेट के लिए, इसके लिए अच्छा है। योगा मुद्रासन, बच्चे तो मयूरासन बच्चों के लिए बड़े मत करना, बड़ों से हो भी ना पाएगा। अब बड़े जब भी कोई पोषण करे, खड़े होकर कुछ कर दिए, कुछ बैठ के कर दिया, कुछ लेट के कर दिया, आगे चलिए तो मंडूकासन हो गया। कंप्लीट साइंटिफिक हेल्थी लाइफस्टाइल, तो योग को डेली प्रैक्टिस है। तो जिंदगी में मैंने कहा कितना दुख होता है रोगों से, डिजीज से। हमारे पास वही ऑप्शन है, मुझे स्वामी जी ने भी बोला, पंडित जी योगा अनअनदरी रोगा। आपको क्या चाहिए, योगा चाहिए कि रोगा? बोलो योगा चाहिए, नहीं तो रोगा तो आपका सब इन्विटेशन दे रखा ऑलरेडी, तो आएगा। योग नहीं किया, if you deny yoga in daily life, then this is when the
मैटर इन योर लाइफ। आज एक संकल्प लेके जाओ कि आज डेली कम से कम 5 ब्रीदिंग, और उसमें भी सीधे बैठो सब, थोड़ी देर करो तो सही। अभी योग करने आए हो तो थोड़ा तो करके जाओ। डेली करना, आपको 99% बेनिफिट दो ही चीजों से हो जाएगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर ओंकार और गायत्री का जप। चलो करो थोड़ी देर, ये तो कर लिया। आज 2-3 आप प्लेज ले लें, क्या डेली योग करना, सुबह खाली पे, सुबह नहीं हो पाया तो शाम को कर लो, एनी टाइम भी कर सकते हो। खाने के आफ्टर फूड 4 और 5 आवर्स के बाद। पूरे वर्ल्ड में किडनी फेलियर बढ़ रहा है, लीवर फेलियर हो रहा है, फैटी लीवर। 50 to 75% are suffering from fatty liver. फैटी लीवर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। रहता है बीड़ी सिगरेट शराब से जो नशा नहीं होता, वो नशे में रहता है। ये आध्यात्मिक मस्ती है, मस्ती। हिंदी में मस्ती बोलते हैं, कन्नड़ा में मस्ती को क्या बोलते हैं? मजा। वो मजे में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं 100 से ज्यादा बड़े काम कर रहा हूं। पूरे विश्व में योग को प्रतिष्ठित किया, 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने योग सिखाया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 200 करोड़। आयुर्वेद को आगे बढ़ाया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट पतंजलि योग पीठ, आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट पतंजलि आयुर्वेद, दिव्य फार्मेसी, नेचुरोपैथ का वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, योगाग्राम निरामयम, और वेद आधारित वैदिक ज्ञान के ऊपर पतंजलि यूनिवर्सिटी। छोटे 2, 3, 5 साल के बच्चे हमारे भगवत गीता, अष्टाध्यायी, दर्शन, उपनिषद, वेद उनको कंठस्थ है। हमारे पूज्य स्वामी कल्याण जी तो जाके आए पतंजलि योगपीठ में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमने आध्यात्म का केंद्र बनाया है बिना गवर्नमेंट के सहयोग के, देश के लोगों को। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा काम करते हैं, गौ सेवा कर 2 लाख से ज्यादा गायों की हम लोग सेवा करते हैं। और मेरा संकल्प है इस देश में करोड़ों गोवंश का नस्ल सुधार करके उसको पुनः गौरव प्रदान करना, गोवंश। फिर एजुकेशन में काम कर रहे भारतीय शिक्षा बोर्ड, वैकल्पिक की शिक्षा पद्धति अब खत्म होगी, पुनः भारतीय शिक्षा परंपरा की प्रतिष्ठा होगी। सबसे बड़ा ज्ञान है योग ज्ञान, बोलो योग ज्ञान। सबसे बड़ी भक्ति योग भक्ति, बोलो योग योग निष्ठा। जिसमें योग निष्ठा होगी उसमें राष्ट्र निष्ठा होगी। योग निष्ठा से क्या होगी, बोलो राष्ट्र निष्ठा। मातृ पुत्री निष्ठा, मातृ पितृनिष्ठा, धर्म निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, आत्मनिष्ठा, वेद निष्ठा। ये सबसे बड़ी निष्ठा योग, सबसे बड़ा ज्ञान योग, सबसे बड़ा कर्म कर्म योग। सबसे बड़ा कर्म क्या है, बोलो कर्म कर। जो सुबह सुबह योग करेगा वो दिन भर कर्म करेगा। मैं करता हूँ, मैं 18 आवर्स डेली काम करता हूँ, और आज से नहीं, लास्ट 40 ईयर से नो हॉलीडे, जो कोई छुट्टी नहीं। काय कवे कर्म ही धर्म है, बस और क्या है। कर्म किया तो अच्छे बने, और डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनता है, हम साधु बने, कोई गरीब बना, कोई अमीर बना, कोई फकीर बना, कोई वजीर बना, कोई वजीर आजम बना, तो कर्म से बनता है आदमी। कर्म ही आदमी की पहचान है, वही उसका सम्मान है, वही उसका स्वाभिमान है। इसलिए योग करो सुबह सुबह और दिन भर अच्छे कर्म करो, तो आपका भी जीवन अच्छा होगा, और ये भारत फिर से विश्व गुरु जगत गुरु परम वैभवशाली बनेगा। ये है योग का मार्ग, ये है भारत की समृद्धि का मार्ग योग। इसलिए
सबको सुबह सुबह क्या करना है? कल से बोलो, सबको योगा करना है। अरे प्राणायाम तो इतना तो सब कर सकते हैं। योग कीजिए, योग फॉर ऑल, और कोई पेमेंट नहीं करना। योग नहीं करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। सब बीमारियां तुम्हारी इंतजार कर रही है, चारों तरफ घात लगाए बैठे शत्रु की तरह। तो जो योग करेगा वो बीमारियों से नहीं मरेगा। तस्य रोग निराश मृत्यु होगा, तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। ऐसा तेजस्वी तो सुबह के योग करना। तो आप किस योग तो सब समस्याओं का समाधान है। बीमारी, बुराई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, अन्याय, शोषण, हिंसा, क्रूरल्टी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, सब खत्म। एक आत्म तत्व योगी सब में देखता है, इसलिए सबसे योगी प्रेम करता है। तो आज एक योग का व्रत आपको वापस पूछता हूँ, रोगी होके जीना है कि योगी होके? योगी होके। दूसरा, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? कितनी लूट हुई सुनो, करीब 1000 सालों से भारत के ऊपर बस सब आंवला, एलोवेरा, सब ये गोनाइल में बता रहा था, ये सब जितना प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है, सब कुछ गाय का घी से लेकर के और बिस्किट, ये सबसे पहले हमने नई चीजें बनाई जो है। बिस्किट में सब लोग कैसा खाते थे? मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट। वर्ल्ड में पहली बार हमने मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट बिस्किट, वो भी गाय के दूध से बनाए। ये इसका एक छोटा भी पैक होता है तो उसमें 1 कप दूध आ जाता है। ये मेरा हाथ में जो पैकेट है इसमें 1 किलो दूध का पाउडर है। 1 किलो दूध का पाउडर तो थोड़ा सा ही होगा ना, 1 किलो दूध का पाउडर, इतने से लोग बिस्किट के नाम पर मैदा खा रहे हैं, सब गंदी चीजें खाते हैं। खाने में क्या खाते हैं? आज से बंद करो। नो ब्रिटानिया का कोई प्रोडक्ट नहीं, विदेशी कंपनी क्यों खाते हो? और वैसे भी मैदा है। नो कोका कोला, नो पेप्सी, नो KFC, नो मैकडॉनल्ड्स, नो बर्गर। क्यों खाते पीते हो? क्या है उसके अंदर? आप लोगों का खान पान सब गड़बड़ कर दिया। अरे अपना इडली, डोसा, सांभर सब आपको कितना बढ़िया बढ़िया है। फिर मकई, ज्वार, बाजरा, रागी, कितना बढ़िया बढ़िया अच्छा चीज है। क्यों खाते हो सब ये चीजें? हेल्दी चीजें खाओ, कोई अनहेल्दी चीज नहीं खाना। 5-7 चीजें तो नेम लेकर के जाओ। आप लोगों को खान पान में अच्छी चीजें खानी है, कुछ चीजों को तो बिल्कुल नहीं खाना। जैसे मैंने अभी सब खराब चीजें बताई, और कुछ चीजें घर में कभी मत लाना। मैदा वाले आटा, नूडल नहीं लेके आना। हेयर ऑयल्स में, हेयर केयर में, चाहे शैम्पू है, हेयर ऑयल है या जो है कंडीशनर है, विदेशी नहीं लाना। आपको अच्छा विकल्प है तो विदेशी क्यों लाना? केश कांति दी आपको, उसमें मिनरल ऑयल मिलाते, उसमें केमिकल मिलाते। अब आपको कोई केमिकल दे और बोले अपने बाल में लगा लो, आप नहीं लगाओगे, बोले केमिकल बाल में। फिर ये शैम्पू क्यों लगाते हो? ये हेयर ऑयल क्यों लगाते हो? विदेशी कंपनियों की सब, और इसमें देसी भी। इसमें तो डाबर से लेके, बजाज से लेकर के, यूनिलीवर से लेकर के सब मिनरल ऑयल डालते हैं 80 to 90%, और वो कैंसर करता है। इसके लिए मैंने पूरा एक कैंपेन चलाया था, लेकिन इतना बड़ा देश है, इसमें तो करोड़ों रुपए खर्च कर दो कैंपेन में तो पता भी नहीं लगता। कृपया मंच पर आएंगे बीजेपी से, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और पूज्य साध्वी आचार्य डॉक्टर देवप्रिया जी जो पूरे देश में अपने महिला संगठन का नेतृत्व करती है, एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो हमारे यहाँ पर आज तहसील में आए पूज्य हमारे संतों के साथ, भाई भंवरलाल जी जो वॉलेंटियर्स कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया इधर, और खूब योग सिखाते हैं सबको, योग क्लासेस चलाते हैं गांव-गांव में भी और यहाँ कंपनी में भी। तो उनको एक बार आमंत्रित कर लेंगे अपने सभी कार्यकर्ताओं को, प्रभारियों को। ಕಂಪ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು, ಮೋನೇಶ್ ಅವರು, ಚಿತ್ರಗಾರ್ ಅವರು, ಎಣ್ಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಾಧಕರ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲಿಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲಿ ನಗರದ ये यहाँ का किला है स्वामी जी जो ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಾಮದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, 4 ಜನ ಸಾಧಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಹೆಸರು ಕರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಾಮದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಎಮ್ಮೆಗನೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಠ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠದ ಯೋಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಚಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಶೆಟ್ಟಿಜಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕ್ಕಲಕೋಟದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 38,000 ಓಟುಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ MLA ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಣ್ಣ ಮುಳುವಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು. ಈ ಯೋಗ ಸೇವೆಗೆ ಅಪಾರ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಣ್ಣ ಮುಳುವಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ. ಈಗ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು, ಮೌನೇಶ್ ಅವರು, SC ಚಿತ್ರಗಾರ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. NV ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು, ಇನ್ನೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ಶ್ರೀ ಭೀಮನಗೌಡ, SN ಮಾರುತಿ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರಗಾರ್, ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ S, ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ. ರಂಗಪ್ಪ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಿ, ಕೆ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಮುಕುಂದಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಶಿವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವಿಜಯವಾಣಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕು.
ಕೊಟ್ಟಿರೋ